अपना ये कर। आपके हिसाब से क्या लगता है, फैमिली प्रॉब्लम ये एजुकेशन में करना है? अच्छा, ओके। और बताइए, सब लोग हिस्सा लीजिए, तभी समझेंगे। यहाँ सिर्फ सुनते हुए बैठेंगे तो शायद इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। कुछ अनुभव करना है, कुछ जानना है, तो फिर उसमें पार्टिसिपेट करें। आपके हिसाब से तो मोबाइल एज कह रहे हैं, मदर टंग में एजुकेशन नहीं है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, और क्या डेंजर है एजुकेशन? बुक स्टडी ओनली, ओके। बुक स्टडी है, वो डेंजर है। और क्या है जो एजुकेशन में आपको लगता है डेंजर, आपके हिसाब से? आंसर सिर्फ याद करते हैं, समझते नहीं है, रट्टा मारते हैं। अच्छा, ये एक डेंजर, ओके। रट्टा मारना डेंजर। और ठीक है, जितना आपने बताया, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। एक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो से ये जानेंगे कि हमारा ब्रेन सीखता कैसे है। फिर हम जानेंगे कि डेंजर क्या है। थोड़ा सा इस वीडियो के साथ रहे, फिर हम बातें करेंगे। What's going on in the brain when you learn? In order to learn anything, whether it's math, a foreign language, guitar, or how to dribble a basketball, you need to create and strengthen pathways in your brain. Think about shooting a free throw. Know that feeling when you've got it down and don't even have to think about it? That's muscle memory. Here's the thing. Muscle memory lives in the brain, not the muscles. Your brain controls everything your muscles do, and it does this by activating specific neural pathways for each and every movement. These are functional pathways, neurons working together to achieve a goal. Say you're learning how to shoot a free throw. If it's your first time doing it, you don't yet have a pathway for that movement in your brain. You need to create it. Let's use an analogy to look at what's happening in the brain during this time. When you're first learning, your brain is like a forest full of trees and dense foliage, with no clear pathway between point A and point B. As you learn the mechanics of shooting a free throw, you create a trail through the forest. Now you can shoot the free throw because you've created that pathway in your brain, but you probably don't make many shots because it's so new. The pathway isn't very clear yet. In order to improve your free throw, you need to refine and strengthen the free throw pathway in your brain. The way you do that is through practice. Practice gradually widens the trail through the trees, turning it into a dirt road between A and B. You're starting to get pretty good now. You're making more free throws than not. You don't have to think about the mechanics as much. That's because the pathway gets stronger after each practice rep, and you've done a lot of reps. With even more practice, the dirt road turns into a paved road connecting A and B, allowing information to be transmitted at a faster rate. Now you're a 70% free throw shooter, and when you step up to the line, you don't even have to think about it. Eventually, with enough practice, what started as a trail has become a full-blown highway. Now you're a master, draining almost every free throw, and the movement is completely second nature. Scientists call this plasticity, and it's your brain's innate ability to create and strengthen connections between neurons. These connections are the path through the forest. Halo Sport optimizes this process by temporarily increasing plasticity in the part of your brain that controls movement, so that your brain can create and strengthen these pathways faster than you would otherwise. We call this hyperplasticity. When you practice or train in this state, you're able to write muscle memory more effectively.
allowing you to get that much more out of your practice. In terms of our analogy, Halo Sport helps you build super highways of muscle memory at an accelerated rate. It's not magic, it's neuroscience. ओके, थोड़क्यात हम थोड़ा सा समझेंगे ये वीडियो में क्या बताया है उन्होंने। ब्रेन कैसे सीखता है। तो जो हम पहली बार बास्केट में बॉल डालते हैं तो वो बराबर नहीं जाता है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर जब हमारा ब्रेन जो है बार बार प्रैक्टिस से एक अपना सेट बना लेता है, एक पाथवे बना लेता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो पाथवे और मजबूत होते जाता है, मजबूत होते जाता है, फिर और मजबूत होता है। फिर जितनी प्रैक्टिस करेंगे एक समय आता है कि हमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, हम डायरेक्ट बॉल डाल देते हैं बास्केट में। सो उस वक्त हमारा ब्रेन एक स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन्स का पाथवे बना लेता है, न्यूरल पाथवे बना लेता है अंदर। ये हर हर इसमें होता है, किसी भी तरह का जो भी हम सीखते हैं उन सभी इसमें इसी तरह की प्रोसेस अंदर होती है। जैसे एक जंगल है समझो, और उस जंगल से आप जा रहे हैं। सो पहली बार आप जा रहे हैं, वहां कोई रास्ता नहीं है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, जंगल से जा रहे हैं, वहां कोई रास्ता नहीं है। तो आप क्या करते हो, जैसे आप जा रहे हो वैसे जाते हो, फिर आपके पीछे और लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, नेचुरली आप जहां से गए हैं वहीं से कुछ ना कुछ तो रास्ता मिल दिखता ही है ना। मतलब आपके पैर के निशान दिखेंगे या कुछ ना कुछ तो ऐसे दिखेगा, तो वो आपके पीछे आएंगे। सो वो आपके पीछे आएंगे और दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। ऐसा करते करते समझो एक 50 लोग उस रास्ते से जब गुजर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे एक रास्ता बन जाता है, बराबर ना। एक रास्ता तैयार हो जाता है, फिर रोज लोग जाने लगे वहां से, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छे से वहां से एक छोटा सा रास्ता बनेगा, फिर और लोग जाने लगे और रास्ता बनेगा। तो रास्ता धीरे धीरे जो कुछ भी नहीं था वहां पे क्या बन गया, एक मजबूत रास्ता बन गया जो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ब्रेन के साथ भी यही होता है। तो ब्रेन के न्यूरॉन्स में कोई पहले रास्ता नहीं होता एक दूसरे की तरफ। जब हम कुछ चीजों की तरफ फोकस करते हैं, कुछ सीखना शुरू करते हैं, तो अपने आप ब्रेन अपने कनेक्शन बना लेता है। और जिसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, ब्रेन क्या होता है, न्यूरॉन्स को एक इलेक्ट्रिसिटी देता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से उनके मार्ग तैयार हो जाते हैं। वो बार बार प्रैक्टिस करने से वो मार्ग क्या होता है, मजबूत हो जाता है, वहां पे हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये हो गया ब्रेन किस तरह से सीखता है। अब हम जाएंगे कि क्या डेंजरस है, उसके भी पहले एक थोड़ा सा और चीज जानेंगे। समझो हमारे ब्रेन को सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन देता है, हमारे सेंसेस देते हैं, राइट। हम क्या सुन सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या स्मेल कर सकते हैं, क्या टेस्ट कर सकते हैं, और क्या स्पर्श महसूस कर सकते हैं, यहीं से हमें ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलता है। समझिए कि कोई बच्चा ऐसे है जिसको कोई भी सेंस नहीं है, मतलब वो टच किया तो भी उसको कुछ महसूस नहीं होता है, ये कोई सेंस नहीं है उसको। टेस्ट भी नहीं पता चलती है, सुन भी नहीं पाता है, सुन भी नहीं पाता है, और देख भी नहीं पाता है। ऐसा कोई बच्चा बैठा है, तो अब मुझे एक बात बताइए, उसके ब्रेन में क्या होगा, टेल मी, क्या होगा, क्या उसके ब्रेन में विद्युत ऊर्जा एक दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ जाएगी, वो रास्ता बनाने की कोशिश करेगी या नहीं? यस और नो, टाइप कीजिए, मुझे बताइए आप क्या समझते हैं। उसको कोई सेंस नहीं है, किसी भी बात का सेंस नहीं है, ना तो वो देख पाता है ना सुन पाता है,
ना ही कुछ स्पर्श महसूस कर पाता है और ना ही कुछ टेस्ट है, ना ही कुछ सुनना है। और वो बैठा है तो वो कुछ भी महसूस नहीं कर रहा है, तो उसके ब्रेन में कुछ हलचल होगी क्या? नहीं होगी नेचुरली, क्योंकि उसको ब्रेन को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो उसके ब्रेन में नेचुरली कुछ भी नहीं जाएगा। तो उसके ब्रेन में कोई इलेक्ट्रिसिटी तैयार नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं बनेंगे, न्यूरॉन्स के कनेक्शन नहीं बने। मानिए कि हमने उसका एक सेंस शुरू कर दिया, समझो उसकी आंखें शुरू कर दी, लड़का बैठा है, कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं हो रहा ब्रेन में। अब उसकी आंखें हमने शुरू कर दी, तो वो क्या करेगा? ऐसे देखेगा, देखेगा तो अंदर कुछ जानकारी जाएगी, राइट ना? कुछ तो जानकारी जाएगी, तो जानकारी जाएगी तो ब्रेन में टिक 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 शुरू हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन शुरू हो जाएगा ना, टिक 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 टिक, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो ब्रेन क्या होगा? स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, राइट ना? न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगी, बराबर? वो जो भी देखेगा वो उसके अंदर जाता रहेगा। फिर समझो हमने उसका ऑडियो सेंस खोल दिया, आंखें ओपन कर दी, फिर ऑडियो सेंस खोल दिया, सुनने की क्षमता खोल दी, तो क्या होगा? तो फिर उसको कोई बुला रहा है, कोई आवाज दे रहा है, कोई उसको बंटी बोल रहा है, कोई बबली बोल रहा है, कोई ये किताब कौन सी है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो सुन पा रहा है। तो सुन पा रहा है तो और टिक 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 बढ़ जाएगा, ब्रेन में हलचल शुरू हो जाएगी ना, वो सुनने की इंफॉर्मेशन अंदर आ गई तो ब्रेन में क्या हो जाएगी? हलचल शुरू हो जाएगी। फिर समझो और उसके सेंसेस हमने शुरू कर दिए, तो बढ़ेगी उसके ब्रेन की जो टिक 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 सारी जो कनेक्शंस है, वो टिक टिक बढ़ेगी कि कम होगी? आपको क्या लगता है? जैसे जैसे सेंसेस शुरू हो जाएंगे, बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? बताइए, मैं आपके साथ चैट बॉक्स में हूं। यस, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, राइट? उसके ब्रेन का स्टिमुलेशन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन बढ़ते जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे, वन बाय वन, जैसे जैसे हम उसके सेंसेस शुरू करेंगे वो बढ़ते जाएगा। ओके, राइट ना? ये समझ में आ रहा है यहां तक? नाउ अब जब बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके सारे सेंसेस लेके, तब वो पहले देखता है, मम्मा देखता है, पापा देखता है, ये देखता है, फूड कहाँ है, कौन कैसे में उसकी जानकारी ले रहा है, कौन उसको संभालता है, ये सारी चीजें उसको दिखाई देती है, तो उसके सारे न्यूरॉन्स जो है उसको अंदर इंफॉर्मेशन डालते जा रहे हैं, ये कौन है, वो कौन है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, सारे तब टक 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 टक। तो बचपन से जैसे ही वो बाहर आता है, गर्भ में भी ये होता है, जैसे ही बाहर आता है, टिक 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 टिक, ब्रेन के सारे कनेक्शंस टक 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 फटाफट फटाफट शुरू हो जाते, स्टिम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो सारी जानकारी पटपट पटपट लेते रहता है, उसका ब्रेन स्टिम्युलेट होते रहता है। ओके, सो अब ये आ गया स्कूल में, ये बच्चा बड़ा हो गया, 1-2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, अब इसको हम लेके आ गए स्कूल में। स्कूल में जैसे ही आता है, वो और अलग अलग चीजें देखता है, वो एप्पल देखता है, ये देखता है, वो देखता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है? और ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, आ रही है, रोज कुछ ना कुछ उसको किताबों का बताया जाएगा, रोज इंफॉर्मेशन आती जाएगी, आती जाएगी, तो और उसके ब्रेन का जो स्टिमुलेशन है वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, अंदर पूरा न्यूरॉन्स के पाथवे बनते, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, अंदर बहुत जटिल है, तो फटाफट फटाफट अंदर क्या होते रहेगा? अलग अलग पाथवेज तैयार होते रहेंगे, जैसे जैसे वो सीखते जाएगा, और चलते जाएगा, चलते जाएगा। ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, इंफॉर्मेशन तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ब्रेन का स्टिमुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, राइट?
ये उसके ब्रेन के साथ हो रहा है। नाउ व्हाट इज बिगेस्ट डेंजर इन एजुकेशन? ब्रेन को स्टिमुलेट करना, मतलब ब्रेन को शुरू करके उसको उत्तेजित करना, ये सारे सिस्टम से हो रहा है। उसका उत्तेजना बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी घूम रही है, ब्रेन सीख रहा है, सीख रहा है, सीख रहा है, और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। लेकिन पूरे सिस्टम में डेंजर क्या है कि हम कहीं भी बच्चों को ब्रेन ऑफ करना नहीं सिखाते। ब्रेन शुरू हो गया बचपन से, वो ढैंग 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 इतना शुरू है, वो 10th स्टैंडर्ड तक चला जाता है, 11वीं 12वीं फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन किसी भी स्कूल में कहीं पर भी बच्चों को ब्रेन को बंद करना नहीं सिखाते, ऑन ऑफ करना नहीं सिखाते। ऑन ऑफ नहीं कर पाते हैं, इसका परिणाम क्या होता है? हम बच्चों में शुरू में आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड तक बड़े क्रिएटिव रहते हैं बच्चे, ये निकालेंगे वो करेंगे, उनको कुछ भी बताओ आप, सो क्रिएटिव, क्रिएटिविटी बहुत रहती है। लेकिन धीरे 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 जैसे बड़े होने लगते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी उनके ब्रेन को सिर्फ स्टिमुलेट करना सिखाया है। मैं देखो, एक कोई आदमी बहुत बिजी है, लगातार बिजी है सुबह से शाम तक, क्या उस आदमी से आप कोई नया ब्यूटीफुल क्रिएशन एक्सपेक्ट करोगे? यस और नो? चैट बॉक्स आपके सामने, थोड़ा थोड़ा आप भी सपोर्ट सहभाग लिया कीजिए। कोई आदमी सुबह से शाम रोज कंटिन्यू बिजी है, क्या उस आदमी से आप कोई नया क्रिएशन के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। वो कुछ क्रिएशन करेगा ही नहीं, जो चल रहा है वो ही करेगा। और यही बच्चों के साथ होता है। चलो मैं मानता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड तक भी ब्रेन को बंद करना सिखाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, एजुकेशन में हम उनको ब्रेन बंद करना नहीं सिखाते, और इसका परिणाम होता है बच्चे और उनका ब्रेन अपनी क्रिएटिविटी खो देता है। दे ओनली मेंटेन दे उसको। हम सिर्फ एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में इसके बारे में बताया था, ये अपना काम करना बंद कर देता है, क्लोज हो जाता है, ऑलमोस्ट क्लोज। उसकी और आउट ऑफ बॉक्स हम कभी जाते ही नहीं है। फिर बच्चे एक लाइन में आ जाए, क्योंकि कितना सहेगा ना, तो एक लिमिट होती है ना सहने की, स्टिमुलेट होने की। तो ब्रेन अपना यही छोड़ देता है कि बोलता है जो चल रहा है ना उतना ले लो, उतना ले लो, उससे ज्यादा आगे नहीं चलना है, आगे नहीं चलना है। कोई क्रिएशन बोलो तो आजकल देखो, आप किसी को बोलो कि क्रिएशन कर, कुछ तो नया कर, तो वो नया नहीं कर पाते बच्चे। और साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हमारी अभी की लाइफस्टाइल ने भी क्या कर दिया है, बच्चों के ब्रेन को स्टिमुलेट, हाईली स्टिमुलेट कर दिया है। मोबाइल सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करता है, ऑनलाइन गेम्स सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। मतलब सारी एजुकेशन सभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों के ब्रेन को स्टिमुलेट करते जा रहे हैं, स्टिमुलेट करते जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं सिखा रहे हैं कि कैसे ब्रेन को ऑन ऑफ करें। आपको पता है आइंस्टाइन को हम साइंटिस्ट मानते हैं, राइट ना? आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट, इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन, राइट? इंटेलिजेंस मानते हैं। और आपको शायद कभी भी आइंस्टाइन के फोटोग्राफ या कुछ भी दिखाया जाए, तो आपको हमेशा आइंस्टाइन को कैसे दिखाते हैं? वो उसके ऐसे बाल दिखाते हैं, और उसके हाथ में मे बी पेन और ये, और उसके ब्लैक बोर्ड में पीछे का मैथमेटिकल इक्वेशन इक्वेशन। लेकिन आइंस्टाइन की एक दूसरी बाजू है,
उसके ब्रेन की, वो किसी को, बहुत कम लोगों को पता है। आपको पता है आइंस्टाइन बहुत अच्छा वायलिन प्लेयर था, इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, वो बहुत अच्छे से वायलिन बजा पाता था। ये बहुत कम लोगों को पता है। और शायद उसके सारे रिसर्च का या शायद उसके ये क्रिएशन का सारा हिस्सा शायद वो वायलिन से आता होगा। उसके उनके ब्रेन का जब स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए कि एक वायलिन बजाने वाला जो म्यूजिशियन होता है, उसके ब्रेन का जो वायलिन का हिस्सा जो डेवलप होता है, म्यूजिक का हिस्सा जैसे जितना डेवलप होता है, आइंस्टाइन के भी ब्रेन का वो हिस्सा पूरी तरह से डेवलप था। इसका मतलब वो उसका जो इंटेलिजेंस था वो सारा का सारा कहां से आता था? वो अपने ब्रेन को ऑन ऑफ कर पाता था। वायलिन बजाते वक्त शायद ब्रेन स्टिमुलेट ना हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये ब्रेन को रिलैक्स करती है, ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करती है। तो उसके सारे साइंटिस्ट या फिर इंटेलिजेंस का राज शायद उसके वायलिन में तो नहीं छिपा था। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? शायद वहीं से तो नहीं आ रहा था उसका सारा क्रिएशन। व्हाट डू यू से, यस और नो? शायद वहीं से वो क्रिएशन। अब और आगे चलते हैं। न्यूटन न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को खोज निकाला। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोज निकाला। वो उस अवस्था में खोज निकाला जहां पे उसका ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स। आपको पता है स्टीव जॉब जो एप्पल के मालिक, उनका सबसे ज्यादा हिस्सा ब्रेन का क्रिएशन का रहा है। वो बहुत अच्छे क्रिएटिव आर्टिस्ट थे। एलन मस्क बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडिया लाने वाले। अभी एलन मस्क इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन वो बंदा, वो आदमी दो चीजों को बैलेंस कर पा रहा है। एक तो उसके क्रिएशन को और उस क्रिएशन को एप्लीकेबल बनाने में। ये इसलिए आज वो इतने सारे बिजनेस में आगे हैं। सो मुझे मुझे ये कहना है कि हमारे एजुकेशन में सबसे डेंजर क्या हो रहा है कि हम ब्रेन को कुछ समय के लिए बंद करना या रिलैक्स करना ये बच्चों को नहीं सिखा रहे, नहीं सिखा रहे। आप जाओ किसी भी स्कूल में, कहीं भी जाओ, बच्चे सिर्फ भाग रहे हैं। कोई पढ़ाई में भाग रहा है, कोई स्पोर्ट्स में भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, सिर्फ भाग रहे हैं। लेकिन ब्रेन को रिलैक्स कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षमता से और उसकी क्षमता को ज्यादा इस्तेमाल कर पाए? ये नहीं हो रहा है, इसलिए ब्रेन स्टिमुलेट होता है। परसों ही मुझे एक फोन आया था, एक पेरेंट्स का फोन था कि वो बच्चा अभी आईबी या आईसीएससी में है और वो उनके सिलेबस के साथ कॉप अप नहीं कर पा रहा है। उनका सिलेबस है और स्कूल में जैसे भाग रहे हैं, अभी 9th में है। पूरा प्रेशर पेरेंट्स का उसके ऊपर है, अभी 10th आने वाला है। 10th में ये चाहिए, इतना परसेंट आना चाहिए, वो सारा प्रेशर और वो सिलेबस। और स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो स्पीड में उसको हो नहीं पा रहा है। वो रोज कंप्लेंट कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। पेरेंट्स उसके पीछे है, बेटा अभी टेस्ट है, अगले
अगले हफ्ते तेरा टेस्ट होने वाला है, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, डैंग डैंग शुरू, वो उसके पीछे। तो उन्होंने मुझे फोन किया था, आप इसे समझाइए क्या करना है। ये बोलता है मुझे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। यहां तक बच्चा चला गया। क्या करेगा ब्रेन एक समय, अगर आपको उसे ऑन ऑफ करना नहीं। मैंने उस बच्चे को मेरा गाइडेड मेडिटेशन का ऑडियो दिया। मैंने कहा 2 दिन कम से कम एक 15 मिनट या आधा घंटा तू थोड़ा सा इसको सुनते हुए बैठ। धीरे धीरे जैसे तेरा ब्रेन ठीक हो जाएगा, आराम से तू आगे बढ़ पाएगा। सो 2 4 5 दिन बाद उसको थोड़ा सा ठीक लगा। वो बोला कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा सर दर्द नहीं है, और लग रहा है कि मैं थोड़ा सा कर पाऊंगा, देखता हूँ कितना कॉपअप। जो निकल गया था बाहर कि नहीं मुझे नहीं करना, उसने छोड़ ही दिया था, मैं बिल्कुल स्कूल नहीं जाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, कुछ नहीं, मेरा सर दर्द करता है, वो ट्रैक पे आ गया। क्यों? क्योंकि पूरे इसमें कोई सिखा नहीं रहा है ब्रेन को ऑन ऑफ करना। ब्रेन को ऑन ऑफ करना सिखाना चाहिए। ये हमारे भारत में प्राचीन संस्कृति में, गुरुकुल में पहले यही सिखाया जाता था कि ब्रेन को ऑन ऑफ कैसे करें, ये सीख लो। उसी को वो ध्यान बोलते थे, मेडिटेशन बोलते थे। तो पहले ब्रेन को ऑन ऑफ करना सीखते। जब चाहिए है तब उसको बाजू रखो, उसका सारा स्टिमुलेशन बंद रखो, साइलेंस हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर 15 20 मिनट शांत होने के बाद फिर से आ जाओ, फिर से पढ़ो, फिर से देखो। फिर उसके बाद कुछ देर बाद ऐसे लगे थोड़ा हेवीनेस महसूस हो जाए, फिर से वापस आ जाओ। फिर से अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये एक तरीका है ब्रेन को ऑन ऑफ करने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन ये जब तक सिखाएंगे नहीं तो इसके डेंजर क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में आने वाली जो जितनी भी पीढ़ियां हैं, वो अपना क्रिएशन खो देने वाली। दे विल नॉट क्रिएट, क्रिएशन होगा ही नहीं अगर हम ब्रेन को ऑन ऑफ करना नहीं सिखाएंगे। तो मे बी 1 या 2 पीढ़ी और एक 20 25 साल 30 साल जाने दो, ऐसे बच्चे आएंगे जो कुछ नया कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जस्ट जो दिया गया है उसी को आगे लेके जाएंगे, नया कुछ क्रिएशन नहीं आएगा। ये होने वाला है। ओके। या फिर ऐसी स्थिति आएगी कि बच्चे सिरदर्द या फिर पागल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत बढ़ने वाली है, टेक्नोलॉजी बहुत आने वाली है, और ब्रेन उस हिसाब से कॉप अप नहीं कर पाएगा, तो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी भी है, शुरुआत तो आप देख ही रहे होंगे, बच्चे मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट ना। बहुत जल्दी चिढ़ते हैं या बहुत जल्दी अति पे चले जाते हैं। ये हो जाए, हो ये नहीं करना है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वैसे करूंगा। बहुत झगड़ालू हो जाते हैं, चिड़चिड़ा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन को रेस्ट देना हमारे सिस्टम में नहीं है। ये अगर नहीं सिखाया गया, ऐसे ही चलता रहा, तो बहुत जल्द 20 30 साल पकड़िए ज्यादा से ज्यादा, हमारे बच्चे क्रिएशन खो देंगे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एजुकेशन बोलते हैं ना, जो हमने लास्ट आई थिंक 2 या 3 सेशन पहले इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एजुकेशन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही चला जाएगा, वो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। तो वो हिस्सा हमारे ब्रेन का एज इट इज, किसी गाड़ी को आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो गाड़ी जाम हो जाती है, फिर चालू नहीं हो पाती है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अगर हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल नहीं हो पाया आगे चल के, तो शायद हमारे बच्चे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वो जाम हो जाएगा, और क्रिएशन तो भूल ही जाइए। ओके। सो ये पहला डेंजर है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो आना चाहिए कि ब्रेन को ऑन ऑफ कैसे करें, कब ब्रेन को शुरू करें और सीखें, और कब मुझे अभी कुछ नहीं सीखना है, आई वांट टू रेस्ट। जैसे हम शरीर की रेस्ट करते हैं, वैसे ब्रेन की भी रेस्ट करना बच्चों को सिखाना चाहिए। ओके, ये एक बात हो गई, पहला डेंजर। दूसरा डेंजर एजुकेशन सिस्टम में, मुझे एक बात बताइए, जो भी ज्ञान हम लेते हैं
वो यूजफुल कब होता है? टेल मी फास्ट। जो भी नॉलेज हम लेते हैं वो यूजफुल कब होता है? वो सार्थक कब होता है उस नॉलेज का? ऐसे बात करेंगे, चलो उस नॉलेज का सार्थक कब होता है? बोलिए फास्ट। एप्लीकेशन से। और नॉलेज का सार्थक कब होता है? शेयरिंग, इम्प्लीमेंटेशन करने से। ओके। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नॉलेज का सार्थक कब होता है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लर्निंग, एप्लीकेशन। राइट। कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज अगर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो वो नॉलेज किसी भी काम का नहीं। जिस ज्ञान का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं। राइट और नॉट? जो ज्ञान हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो ज्ञान वैसे भी किसी काम का नहीं है। इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन विदाउट एप्लीकेशन इज डेंजर। दिस इज बिगेस्ट डेंजर इन आवर एजुकेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सबसे बड़ा डेंजर है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम इंफॉर्मेटिव है, एप्लीकेबल नहीं है। हम बच्चों को सिर्फ ज्ञान, मेमोराइज करो, मेमोराइज करो, मेमोराइज करो, ये मेमोराइज। मुझे अब आपने भी तो पढ़ा है ना, आपके सब लोग पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ इस्तेमाल किया? कहाँ इस्तेमाल किया? हाँ, कहीं इस्तेमाल नहीं किया। राइट। मैं इंजीनियर हूं, फिर भी मैं आपको बताता हूं मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया है साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने इंजीनियरिंग के बड़े बड़े डिजाइन किए हैं, मैंने मेरी कंपनी में बहुत सारा डिजाइनिंग वर्क किया है, लेकिन कहीं भी मुझे साइन थीटा कॉस वो इस्तेमाल नहीं कर पाया जो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ा। सो नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज यूजलेस, और हम यूजलेस नॉलेज हमारे बच्चों को दे रहे हैं। और इसका परिणाम क्या है पता है? हमारे बच्चे डिग्री लेके बाहर आते हैं, डिग्री लेके आते हैं और उनको कोई जॉब नहीं देता। बड़े बड़े होशियार हैं, इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग में 90% मार्क्स है, लेकिन कोई कंपनी जॉब नहीं देती, बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि जो भी एजुकेशन लिया है वो किसी काम का नहीं है। सो हमारा एजुकेशन जो है इंफॉर्मेटिव टाइप है, एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन का उसमें हिस्सा नहीं है, और ये सबसे बड़ा डेंजर है। इंफॉर्मेशन से आप क्या करोगे? ये तो एक मेमोरी हो गई बस। आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है। आपको पता होने से क्या होता है? उसका इस्तेमाल करने का तरीका कहाँ है? एक्सपीरियंस कहाँ है? सो एजुकेशन सिस्टम में बहुत पहले से, मैं तो कहता हूं प्ले ग्रुप से एक्सपीरियंस के आधार पर एजुकेशन होना चाहिए। नहीं तो आपका बच्चा सिर्फ मेमोराइज करेगा, उसको ज्ञान तो बहुत है लेकिन इस्तेमाल करने का कोई तरीका पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। राइट। सो विदाउट एक्सपीरियंस जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा डेंजर होगा। क्योंकि हम एजुकेटेड लोग तो तैयार करेंगे,
एजुकेटेड लोग तैयार करेंगे, लेकिन काबिल लोग हम तैयार नहीं कर पाएंगे। आज हम कहते हैं ना भारत में बेरोजगारी है, एक्चुअली रोजगार नहीं है ऐसा नहीं है, रोजगार है, काबिल लोग नहीं, इसलिए जॉब नहीं मिल रहा है। काबिलियत नहीं है और एजुकेशन बहुत कर लिया है। एजुकेशन इफ नॉट अप्लीकेबल, दैट एजुकेशन इज यूजलेस। और ये यूजलेस एजुकेशन अगर हम देते रहेंगे तो दिस इज द बिगेस्ट डेंजर इन आवर एजुकेशन सिस्टम। आने वाले दिनों में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। और पता है आपको ना, ये स्किल पार्ट डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने डाला है ना, स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करो, है ना, अभी आया है ना, पता है ना आपको, स्किल पार्ट डेवलप करो बोलते हैं वो। तो ये क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से काबिल लोग नहीं निकल पा रहे हैं, सिर्फ एजुकेटेड लोग निकल पा रहे हैं। बचपन से बच्चों को अप्लीकेबल एजुकेशन होना चाहिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से नहीं, प्ले ग्रुप से जो भी सिखाया जाएगा वो एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सिखाया जाएगा, और वो जो भी होगा उसका अप्लीकेबल पार्ट भी उन्हें दिया जाएगा। सिर्फ ए फॉर एप्पल दिखने के लिए नहीं, उसका अप्लीकेबल से लेके सब कुछ अगर एक्सपीरियंस के थ्रू दिया जाए तो ही हमारे आने वाले दिनों में एजुकेशन में या फिर हमारे बच्चों के क्वालिटी में, काबिलियत में फर्क पड़ेगा। अदरवाइज जो चल रहा है चल रहा है। और ये डेंजर क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ये सारी चीजों में अगर बहुत जल्द हमने कुछ भी नहीं किया तो हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये जो आज के बच्चे हैं ये कल हमारे भारत का भविष्य होने वाले हैं। आज के बच्चे कल का भविष्य है, और कल का भविष्य अगर यूजलेस होगा, यूजलेस एजुकेशन लेके आगे जा रहा होगा, तो हमारे भारत का भविष्य क्या हो सकता है? उसी तरह का हो सकता है, राइट ना? सो ये दूसरा एजुकेशन में, अब मैं ये कह रहा हूं, ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये पेरेंट्स ने भी सीखना है कि ये बच्चों को किस तरह का ज्ञान देना चाहिए, किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए। एक्सपीरियंस के थ्रू ही एजुकेशन हो सकता है, बिना एक्सपीरियंस के एजुकेशन नहीं। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ टीचर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये पेरेंट्स के लिए भी बात कर रहा हूँ। और तीसरा हिस्सा आता है जो और भी डेंजर है, वो ये है, हम बच्चों को पूरे एजुकेशन के सिस्टम में फोर्सफुली एजुकेशन दे रहे हैं, फोर्सिंग टू लर्न, वी आर फोर्सिंग टू लर्न। हम जोर जबरदस्ती करके बच्चों को सिखा रहे हैं। फोर्सिंग टू क्रिएट, हम बोलते हैं ना, अरे क्रिएट करो, कुछ तो नया क्रिएट करो, कुछ तो नया क्रिएट करो। मुझे एक बात बताइए, आपके सर पे कोई बैठ जाए और आपको बोले कि कुछ तो नया क्रिएट कर, कुछ तो नया आइडिया लेके आ, क्या आप ले पाएंगे आइडिया? कैन यू क्रिएट? यस और नो? क्या सर पे कोई बैठ गया और आपको बोले कि ये आना चाहिए तुझे, ये क्रिएट कर, नया कुछ कर, इसमें आएगा आपको? यस और नो? नेवर, नेवर, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्रिएशन या कोई भी चीज सीखने का बेसिस ही ये होना चाहिए कि रिलैक्स, उस प्लेटफॉर्म में देखो। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं, जो कि अभी के एजुकेशन सिस्टम में बहुत डेंजर तरीके से पढ़ाया जाता है। पढ़ाई कर, रट्टा मार, ये आना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तेरा प्रोजेक्ट, टैंग 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 टैंग, खत्म। बच्चा वहीं पे खत्म हो जाता है, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहता है कुछ साल बाद। स्कूल, अभी आप किसी भी बच्चों को थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद पूछो क्या आपको स्कूल जाना है,
कितने बच्चे दिल से बोलते हैं हाँ मुझे स्कूल जाना है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि एजुकेशन फोर्सफुली दिया जा रहा है। एजुकेशन क्या होता है आप समझिए, मैं आपको बताता हूं, जो कि नहीं हो रहा है। एजुकेशन ये होता है कि हमें ऐसा माहौल निर्माण करना है जिस माहौल में बच्चा अपने आप सीख ले। समझ रहे हैं आप? सिखाने की जरूरत ना पड़े, अपने आप सीख ले, उसको कहते हैं एजुकेशन। हम एजुकेशन क्या दे रहे हैं? फोर्सफुली सीख, 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 ये सीख, वो सीख, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, डैंग डैंग डैंग, राइट। इस तरह से एजुकेशन अगर दिया जाए, इससे डेंजर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। डेंजर ये होगा, हमारे बच्चों का ब्रेन कुछ दिन बाद, फोर्थ स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड के बाद, अगर फोर्सफुली पढ़ाया जा रहा है बचपन से, तो थर्ड स्टैंडर्ड तक आते आते आपका बच्चा एजुकेशन से इंटरेस्ट खो देगा, राइट। फिर एजुकेशन उसके लिए क्या बनेगा? एक फोर्सफुल एक्टिविटी बनेगा कि हम, अरे मम्मी भेज रही है, पापा भेज रहे हैं, ऊपर से वो टीचर डंडा लेके बैठा हुआ है, करना तो पड़ेगा, क्या करेंगे। ये सब लोग, और सब लोग क्या बोले, अरे नहीं पढ़ेगा तो तेरा लाइफ क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा। हम भी तो बच्चों को बोलते हैं ना, तू पढ़ने वाला नहीं है तो क्या भीख मांगेगा क्या रास्ते पे? ऐसा हम भी तो बोलते हैं ना, नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, पढ़ेगा तभी ना बिल्डिंग बना पाएगा, नौकरी कर पाएगा, कुछ तो कोई तो तेरे पूछेगा, पढ़ेगा तो। यही कहते हैं ना हम लोग। तो बच्चे को डर लगता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो शायद मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, बंगला कौन बनाएगा, ये कौन बनाएगा, वो कौन बनाएगा, ये जीवन मेरा कैसे होगा। तो वो जबरदस्ती पढ़ना शुरू कर देता है, और जबरदस्ती पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? हाँ, क्या पढ़ पाएगा? कुछ नहीं पढ़ पाएगा, तो ब्रेन की क्षमता गई। तो ये तीनों चीजों से हम बच्चों की ब्रेन की क्षमता मारते हैं। मैं इन रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें एजुकेशन में जिसके ऊपर बात की जा सकती है जो डेंजर है, लेकिन ब्रेन की क्षमता के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीन चीजें मुझे नजर आती है कि ये पूरी तरह से हमारे बच्चों के ब्रेन को डैमेज कर देगी। ऑन ऑफ करना नहीं सीख रहे हैं, नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं, एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं सीख पा रहे हैं, और फोर्सिंग टू लर्न। लर्निंग अपने आप हो जाएगा, आप बच्चों को उस माहौल में डाल दो, बराबर। सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चे सीख जाते हैं अगर माहौल तैयार कर दिया जाए। सिंपल समझिए, आपके बच्चे को उठा के अमेरिका लेके गए और वहां रख दिया, राइट। तो 6 महीना आपका बच्चा अगर अमेरिका में रह के आ जाएगा, तो आपके बच्चों को इंडिया में आने के बाद क्या आप इंग्लिश सिखाओगे? या सीख के आएगा? सीख के आएगा ना। और अमेरिका में उसको छोड़ोगे तो वहां क्या एबीसीडी सीखेगा वो? कोई उसको एबीसीडी सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। क्योंकि आजू बाजू में जो भाषा बोली जा रही है, जो वातावरण तैयार हुआ है, उसी वातावरण को वो कैप्चर कर लेगा, एक एक शब्द को कैप्चर कर लेगा और अपने आप सीखेगा। इसका मतलब एजुकेशन कैसे होता है? वातावरण जो तैयार किया जाए वहीं से एजुकेशन होता है। हम फोर्सफुली बिठा के अगर एजुकेशन करवाएंगे तो कैसे एजुकेशन होगा? नहीं हो पाएगा। इन तीनों चीजों से हम ब्रेन की क्षमता को इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए मैं कहता हूँ दिस आर द वेरी डेंजर इन एजुकेशन। इन चीजों को बदलना होगा। कैसे बदलेंगे और क्या करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आप घर से शुरू कर सकते हैं, घर से बच्चों को हम बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में, ये हो गई एक कॉन्सेप्ट। मैं ये कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम बता के नहीं चलेगा, मुझे आपको सोल्यूशन भी देना होगा, तभी मेरे ये प्रॉब्लम बताने का सार्थक है, राइट ना। सिर्फ प्रॉब्लम बताने वाले तो बहुत बता देंगे कि ऐसा है वैसा है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में, जब भी हमारा सेशन होगा नेक्स्ट सेशन में, इसके बारे में हम सोल्यूशन घर से लेके स्कूल तक
हम क्या क्या कर सकते हैं इससे बच्चों को बाहर निकालेंगे, वो जरूर हम करेंगे। ओके, सो आज के लिए हम यहीं पे रुकने वाले हैं। आपको अगर कुछ पूछना है आज के सेशन के रिलेटेड तो आप अपना माइक ऑन करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, हम सिर्फ एक या दो शेयरिंग लेंगे, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। इफ यू वांट एनीथिंग टू आस्क, बोलिए। कुछ पूछना है? एनीथिंग? या फिर रुकना है? चलिए, आज के लिए रुकते हैं। ओके, प्रार्थना करेंगे और रुकेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले शनिवार को। बाय बाय। यस सर। बाय। मीटिंग बंद कर रहा हूं मैं।